इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दैट मीन्स अर्थ के सरफेस पे, ग्लोब पे उसकी पोजीशन क्या है? जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो नेचुरली आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल को बताते हो। दिल्ली का लैटिट्यूड एंगल लगभग 28.6 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड एंगल करीब करीब 77.2 डिग्री ईस्ट है। ये डिग्री क्या है? ऑफ कोर्स इट कैनॉट बी टेम्परेचर, इट कैनॉट बी सो वियर्ड, इजंट इट? डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता। डिग्री, इट मस्ट बी रेफरिंग टू सम एंगल। व्हाट सॉर्ट ऑफ एंगल आर दीज? लैटिट्यूड एंगल एंड लॉन्गिट्यूड एंगल। ये कौन से एंगल हैं एक्चुअली में? जूनियर क्लासेस में आपकी ज्योग्राफी की बुक में शायद इसको एक्सप्लेन किया गया था, पर उस समय आपने बहुत ध्यान दिया नहीं था। नतीजा ये है कि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 8, 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे होते हैं, उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल एग्जैक्टली क्या है उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो क्या सर आज आप ज्योग्राफी की सेशन ले रहे हो? नहीं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो समझाऊंगा ही मैं आपको, साथ में फिजिक्स का एक रादर डिफिकल्ट सा क्वेश्चन भी आप खुद ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं मैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन एयरप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए सिटी ए टू अनदर सिटी बी, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंगल ऑफ टू सिटीज आर। फॉर सिटी ए, longitude is represented by phi 1 east and latitude is theta 1 north. For city B, longitude is phi 2 east and latitude is theta 2 south. What it means is, radius of the earth is r, an aeroplane flies from some city A to another city B. It takes any path. You have to tell me the displacement of the aeroplane. It is given that radius of the earth is r and coordinates of these two cities are given. Basically latitude and longitude angles are given. The latitude angles are theta 1 and theta 2, theta 1 north, theta 2 south, and the longitude angles are phi 1 east and phi 2 east. So in terms of theta 1, theta 2, phi 1, phi 2 and radius of earth r, you have to tell me the displacement of the aeroplane as it moves from city A to city B. Now, if you are not aware, displacement means shortest distance between 2 points. So in this case, you have to imagine that there is a hole or a tunnel drilled from city A to city B. Think of a tunnel that has been bored from city A to city B. Now, what is length of this tunnel? That is displacement. That is what is being asked. आप में से जिन लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल रियली में ठीक से समझ में आता है, वो स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी लोग, इवन इफ यू आर इन जूनियर क्लास, प्लीज बी विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what is exact meaning of latitude angle and longitude angle. Please bear with me for few more minutes. In general, most of us are familiar with Cartesian coordinate system. If it is given that a particle is moving on a straight line, it is very easy to tell the position of the particle. It is usually done using one number. What is that number? We think like this. Suppose particle is allowed to move along this line. Let us call this line as x-axis and let us take a fixed point on this line. This fixed point is origin. All distances will be measured from this point. So if particle is located here, let us say 2 meter away from point O, then we say its x coordinate is 2 meter. And when I tell you the x coordinate of the particle, you understand where exactly the particle is. If the particle is in opposite direction, we have taken this direction as positive. If the particle is 2 meter away from point O in this direction, then its x coordinate is written as -2. Plus and minus sign are a way to differentiate between these two directions. But if a particle is moving in a plane, suppose एक चींटी है जो इस blackboard की plane में move कर रही है, in that case its position can be told only by use of two numbers. ये चींटी यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए ये फ्लोर दिखाया मैंने, ये एक्स एक्सिस फ्लोर पे है, ये वाई एक्सिस फ्लोर पे, ऐसा सोचिए, और फ्लोर पे कोई पार्टिकल यहाँ है तो इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो नंबर्स बताने पड़ते हैं. कैसे?
ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिए, एक्स डायरेक्शन में लेटर से 2 मीटर चले आप, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 3 मीटर चले, इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो हम कहते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, दैट मीन्स x2 एंड y3। अब इस चींटी के पंख निकल आए और अगर ये उड़ने लगी तो इन जनरल ये 3 डायमेंशन में मूव कर रही है। ऐसे किसी पार्टिकल की पोजीशन को ठीक से एक्सप्रेस करने के लिए हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे केस में हम एक्स वाई के साथ एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस z डायरेक्शन ले लेते हैं। अगर चींटी कहीं यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 नंबर बताने पड़ते हैं, उसके x, y और z कोऑर्डिनेट। जैसे ऑरिजिन से स्टार्ट किया, 2 मीटर x डायरेक्शन में चला, 3 मीटर y डायरेक्शन में चला, और अब लेटर से 5 मीटर z डायरेक्शन में चल के हम चींटी तक पहुंच गए। तो चींटी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, 5। So set of 3 numbers in general is required to represent the position of any particle that is moving in 3 dimension. The set of these 3 perpendicular axes are quite popular, and this manner of representing the position, this manner of representing the coordinates of a point is often referred to as Cartesian coordinate system. But there is another coordinate system which could be useful in many other situations. It is known as spherical polar coordinate system. And in that coordinate system also, you need 3 numbers in general to express the position of a particular point in 3 dimension. But वहाँ पे जो numbers हम लेते हैं वो यहाँ पे तीनों distance हैं x, y, z। उस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक डिस्टेंस ऑरिजिन से पॉइंट की दूरी को बताते हैं और साथ में 2 एंगल्स को बताते हैं। उन 2 एंगल और एक डिस्टेंस की मदद से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन फिक्स्ड ऑरिजिन। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो एक्चुअली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अर्थ के सेंटर से सरफेस पे किसी भी शहर की जो दूरी है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है, जो रफली 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो अर्थ के सेंटर को अगर हम ऑरिजिन मानते हैं तो ऑरिजिन से अर्थ के सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा मैंने कहा कि हम 2 एंगल और बता दें तो हम अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। एक्चुअली में वो 2 एंगल लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल है। तो वो लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल क्या होते हैं इसको समझते हैं, लेकिन जस्ट एक पैरेलल बैठाने के लिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में जब एक पार्टिकल के पोजीशन को आपको ठीक से एक्सप्रेस करना होता है तो आप अक्सर ऐसा ग्राफ पेपर यूज़ करते हो, राइट। सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, लेट अस से दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। सो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल रन करती हुई बहुत सारी लाइंस, ये ग्रिड जो है ये हेल्प करता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बहुत आसानी से कन्वे करने के लिए। इसको हमने अगर ऑरिजिन मान लिया और हम इस पॉइंट की पोजीशन को देखना चाह रहे हैं तो बड़े आसानी से x डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर, 2 3 सेंटीमीटर, y डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2। इट इज़ क्वाइट ईजी to locate a particular point in this gridded pattern, right? ये जो ग्राफ शीट आप कहते हो। ग्लोब के ऊपर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो भी ऐसे ही सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हैं। वो एक स्फेरिकल सरफेस पे ड्रॉ की गई सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हैं एंड इट इज़ नथिंग अदर देन दिस ग्राफ पेपर एक्चुअली। जैसे इस ग्राफ पेपर में इन सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्कल्स जो हैं सेट ऑफ 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, उनकी मदद से हम बड़े आसानी से ग्लोब पे किसी पॉइंट की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर सर्कल्स हैं इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अगर हम अर्थ को, ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, कैसे? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम ऐसा कर पाते, चाकू चला के इसको 2 हिस्सों में काट दें तो जो बीच का ग्रेटर सर्कल मिलेगा उसको हम इक्वेटर कहते हैं, राइट। उस इक्वेटर को यहाँ ब्लू कलर से दिखाया गया है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर का जो सर्कल है उसका प्लेन है।
अब आप इमेजिन करो कि इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल एक दूसरा सर्कल है, ये दूसरा सर्कल एक लैटिट्यूड सर्कल है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड सर्कल है, इसके पैरेलल कोई भी सर्कल बना दो, ये एक लैटिट्यूड सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे कोई एक शहर है, कोई जगह है, अर्थ के सेंटर से इस शहर की दूरी कितनी है, अर्थ के रेडियस के बराबर, और अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट P को जोड़ने वाली ये लाइन, ये एरो, एक्चुअली इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, वो इक्वेटर का जो सर्कल है उसके साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लैटिट्यूड एंगल कहते हैं, इस एंगल को हम लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये शहर यहाँ नहीं होकर अगर इस सर्कल के ऊपर कहीं और हो, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, इस सर्कल के ऊपर कोई दूसरा शहर अगर हम ले लें सेम सर्कल के ऊपर, तो O से P को जोड़ने वाली ये लाइन इस ब्लू कलर के प्लेन के साथ सेम एंगल थीटा बनाएगी। या कोई तीसरा शहर ले लें इस तरीके से, तो भी ये O से P को जोड़ने वाली लाइन इक्वेटोरियल प्लेन के साथ सेम एंगल बनाएगी। इसको इमेजिन करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। एक मिनट इमेजिन कीजिए कि ये हाथ ही इक्वेटोरियल प्लेन है, ये ब्लू वाला सरफेस है, और ये पेन लाइन OP को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शहर है, ये अर्थ का सेंटर है। ये लाइन इस हाथ के साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ लेट अस से 40 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसको अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ इस पेन को, तो अभी भी ये पेन मेरे हाथ के साथ 40 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। ये पेन मेरे हाथ के साथ 40 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो पेन के टिप पे जितने भी शहर हैं, सबका लैटिट्यूड एंगल, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये एंगल तो सेम ही हुआ। तो नेचुरली ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सबका लैटिट्यूड एंगल एकदम सेम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप एक डिफरेंट सर्कल बनाओगे तो लैटिट्यूड एंगल ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। इसी बात को यहाँ एक और डायग्राम एक बार और बना के दिखा रहा हूँ। ये जितने भी एरोज आप बना रहे हैं अलग अलग शहरों को कनेक्ट करने वाले इस शहर पे, इन और भी बहुत सारे एरोज अगर आप बना दें तो एक ऐसे कोन जैसी चीज़ बन जाएगी। इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दैट मीन्स अर्थ की एक्सिस के साथ इनमें से ब्लू एरो में से कोई भी एक एरो जो एंगल बना रहा है, इसको कई बार हम कोलैटिट्यूड भी कहते हैं। कोलैटिट्यूड, इफ थीटा इज द लैटिट्यूड एंगल देन कोलैटिट्यूड इज 90 माइनस थीटा। ये समझा जा सकता है कि इस इक्वेटर के ऊपर जितने शहर हैं सबका लैटिट्यूड एंगल 0 डिग्री है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये लैटिट्यूड एंगल बड़ा होता जा रहा है। इस डायग्राम में शायद ये लैटिट्यूड एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर हम ये सर्कल लेंगे तो ये लैटिट्यूड एंगल शायद 75 डिग्री है, और नॉर्थ पोल आते आते लैटिट्यूड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लैटिट्यूड एंगल इस तरफ जाने से बढ़ रहा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इस लोकेशन के लैटिट्यूड एंगल को हम 60 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। मतलब लैटिट्यूड एंगल को 0 से 90 ऊपर, और सिमिलरली ऊपर नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 से 90, और फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में 0 से 90 तक हम मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई शहर है तो इसका लैटिट्यूड एंगल हम बोलेंगे 60 डिग्री साउथ, राइट। सिर्फ लैटिट्यूड एंगल बताने से और अर्थ का रेडियस बताने से किसी भी शहर की लोकेशन फिक्स नहीं हो पाई है, क्योंकि लैटिट्यूड एंगल 60 डिग्री पे ये सारे लोकेशन हो सकते हैं। अभी हमें एक और एंगल बताना है जिसकी मदद से किसी भी एक पॉइंट की अर्थ के सरफेस पे लोकेशन एकदम फिक्स हो जाएगी। उस नंबर, उस एंगल को हम लॉन्गिट्यूड एंगल कहते हैं। जैसे इक्वेटर एक सर्कल है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से अब आप इमेजिन कीजिए कि अर्थ की एक्सिस डायमीटर है और एक सर्कल इमेजिन कीजिए। अगर आप काट पाते अर्थ को ऐसे काट दीजिए, अब फिर से अर्थ 2 हेमिस्फीयर में बट गई। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। ये वो कट करने के बाद जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितने एंगल पे कोई जगह इसको लैटिट्यूड एंगल कहते हैं, उसी तरीके से ये डायग्राम में जो वर्टिकल दिख रहा है, दिस इज नॉट वर्टिकल एक्चुअली, डोंट गेट कंफ्यूज, पर इस डायग्राम में जो ये वर्टिकल रेडिश ऑरेंजिश सर्कल दिख रहा है,
इस सर्कल के साथ कोई जगह कितने एंगल पे है, उस एंगल को हम लॉन्गिट्यूड एंगल कहते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल है लैटिट्यूड एंगल। अब इस वाली सर्कल इस प्लेन के साथ जो एंगल है उसको हम लॉन्गिट्यूड सर्कल कहते हैं। जैसे इस सर्कल को आप इक्वेटर कहते हो, उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड सर्कल्स हैं इनमें से एक सर्कल को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इनमें से एक को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। देखिए इक्वेटर एक ही हो सकता है क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स्ड है। इसके परपेंडिकुलर अगर हम स्लाइसेस करेंगे तो अर्थ को दो एग्जैक्ट इक्वल हिस्सों में बांटने वाला सर्कल तो एक ही है। बट ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए मल्टीपल कई सारे हो सकते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर, इक्वेटर के परपेंडिकुलर आप बहुत सारे सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। मेरे पास एक ग्लोब है, मैं शायद आपको इमेजिनेशन में थोड़ी मदद मिले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेटर सर्कल है, ये इक्वेटर है, और ये जितने भी ऐसे सर्कल आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये सब के सब इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें से कोई एक सर्कल यूनिक सर्कल नहीं है, सभी एक जैसे हैं। रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, विदाउट एनी लॉजिक, हिस्टोरिकल कारणों से, आप ऐसा समझ लें, पर कोई साइंटिफिक लॉजिक है नहीं, हिस्टोरिकल कारणों से इनमें से एक सर्कल को रेफरेंस सर्कल मान लिया गया। वो सर्कल जिसको रेफरेंस सर्कल माना गया है वो सर्कल इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की जगह से पास होती है और उसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मैं एक आध और जगहों के नाम ले लेता हूँ जहाँ से वो पास हो रहा है। जस्ट ए मिनट, ये है, अगर आप देख सकें, मुझे पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा है, ये 0 डिग्री यहाँ पे लिखा है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल प्राइम मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये घाना से पास हो रहा है, ये अल्जीरिया से पास हो रहा है, ये माली से पास हो रहा है, ये फ्रांस से पास हो रहा है, और ऑफ कोर्स इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से तो पास हो ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल संभव हैं। इनमें से आप ऐसा सोचो कि रैंडमली किसी ने हमने किसी एक पे हाथ रख दिया और कहा कि लेट दिस बी रेफरेंस। इस सर्कल के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जिस शहर की बात हो रही है वो कितने एंगल से ऐसे घूमा हुआ है। इस सर्कल को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, ये प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को अभी हम अपनी बातचीत में नाम दे देते हैं क्यू। प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं इजी रेफरेंस के लिए। अब ये अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है। ब्लू कलर के प्लेन से ये पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, लैटिट्यूड एंगल है। पर हमें अब एक और एंगल बताना है, इस प्लेन के साथ कितना घूमेंगे तो हम इस लोकेशन तक पहुंचेंगे। इस एंगल को हम लॉन्गिट्यूड एंगल कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए, ये इक्वेटोरियल प्लेन और ये प्राइम मेरिडियन, ये वो पॉइंट है क्यू। ठीक है, अर्थ के सेंटर से क्यू को जोड़ दीजिए, ये रेफरेंस लाइन है। अब समझिएगा, सपोज ये शहर है पी, ओ से पी को जोड़ दिया, ये ओपी उसका पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस ओपी जो है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है। पॉइंट पी से इक्वेटोरियल प्लेन पे ब्लू सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। पॉइंट पी से ब्लू सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। लेट अस से ये पॉइंट है एस। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अब ओ से एस को जोड़ दीजिए। देखिए ये जो एंगल है इसको हम लॉन्गिट्यूड एंगल कहते हैं। ये रेफरेंस लाइन है, प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को जहां कट कर रहा है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। यहां से लेट अस से आप 70 डिग्री ऐसे घूम गए तो ये 70, यहां से जो लॉन्गिट्यूड सर्कल पास होगा, अगर आप इमेजिन कर सकें, यहां से जो लॉन्गिट्यूड सर्कल पास होगा पी से, वो ऐसे कट करता हुआ जाएगा, ऐसा। जस्ट ए मिनट, हाँ, यहां से जो लॉन्गिट्यूड सर्कल पास होगा वो सर्कल ऐसा पास होगा और ये लॉन्गिट्यूड सर्कल इस लोकेशन से 70 डिग्री के एंगल पे है, तो हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूड इस शहर का 70 डिग्री है। विच मीन्स पॉइंट पी की पोजीशन कैसे फिक्स कर रहे हैं एक बार फिर से देखिए। ओ, क्यू भी एक फिक्स पॉइंट है अर्थ की सरफेस पे जहां प्राइम मेरिडियन इक्वेटर को कट कर रहा है।
70 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटोरियल प्लेन में 70 डिग्री घूम जाइए। सपोज इस जगह का लैटिट्यूड एंगल 60 डिग्री नॉर्थ है, तो ये 70 डिग्री घूमने के बाद यहाँ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ ऊपर उठ जाइए। अब आप अर्थ के सरफेस पे जहाँ हैं वही पॉइंट P को रेफर कर रहा है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से इन दो एंगल्स और अर्थ के रेडियस की मदद से, अर्थ का रेडियस बिकॉज फिक्स्ड है उसको मेंशन नहीं करते, इन दो एंगल्स की मदद से आप अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट की लोकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्विकली आ जाते हैं हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन पे। इसके लिए लेट अस से ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि बहुत फैमिलियर लगता है हमें, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वगैरह लिखना बड़े आसानी से जानते हैं, इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज O से इस पॉइंट P की दूरी R है, ये रेफरेंस लाइन है। एक्चुअली ये OQ है हमारे पिछले अभी थोड़ी देर पहले के डिस्कशन में। ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये जो एंगल है, ये एक्चुअली में हमारे डिस्कशन का लॉन्गिट्यूड एंगल है। पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इक्वेटोरियल प्लेन में, इस पॉइंट का नाम दिया XY प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन है। इस रेफरेंस लाइन से फाई एंगल पे घूमने पे ये लाइन हमें मिलती है, लॉन्गिट्यूड एंगल है। और लैटिट्यूड एंगल कौन सा है? इक्वेटोरियल प्लेन, XY प्लेन, ये लाइन OS इक्वेटोरियल प्लेन में है, यहां से कितना ऊपर ये लाइन है, राइट? ये लैटिट्यूड एंगल है। तो अगर R, थीटा और फाई दिया है तो आप इस पॉइंट के XY और Z कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से Z एक्सिस, अभी हमारे डिस्कशन में अर्थ की एक्सिस ही Z एक्सिस है, अगर आप ठीक से सोच पाए तो। O से Q को जोड़ने वाली लाइन X एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन में लाइन Y एक्सिस है। तो यहाँ से Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये R है, ये थीटा है। जिन लोगों को थोड़ा वेक्टर्स आते हैं, थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री आती है, वो समझ जाएंगे कि ये जो लाइन OS है इसकी लेंथ एक्चुअली में R cos थीटा है। और इस जस्ट ए मिनट, इस पॉइंट का नाम अगर मैं T दे दूं तो जो OT है, OT इसकी लेंथ R sin थीटा है। तो इस पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट तो OT ही है, विच इज R sin थीटा। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट की, एक इधर और एक इधर, OS। अब ये OS एक वेक्टर है XY प्लेन में, इसके फर्दर दो कंपोनेंट करेंगे हम, X और Y डायरेक्शन। यहाँ से Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। बहुत आसानी से देख सकते हैं आप। ये लेंथ OS cos फाई, ये वाली लेंथ हो जाएगी। इसलिए अब मैं सीधा लिख रहा हूँ कि इस पॉइंट के जो X कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ, दिस इज इक्वल टू OS मतलब R cos थीटा इंटू cos फाई। इसी पॉइंट के जो Y कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट का ये डिस्टेंस, ये कैसे मिलेगा हमें? दिस लेंथ OS मतलब R cos थीटा इंटू साइन फाई। इसके लिए थोड़ा अगर आप वेक्टर्स जानते हैं तो आसान है आपके लिए। ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो ये कोसाइन फैक्टर से मिलेगा, और जो दूसरा वाला लेंथ है ये साइन फैक्टर से मिलेगा। तो इस पॉइंट के X, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स OT है, R sin थीटा। तो अगर R, थीटा, फाई आपको पता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उस पॉइंट के X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो दोनों शहरों के लिए थीटा और फाई आपको पता है, इसलिए दोनों शहरों के लिए X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। अब दो पॉइंट जो X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मुझे लगता है आपको पता है। तो आप फाइनल आंसर तो लिख सकते हैं। फाइनल आंसर थोड़ा देखने में बड़ा होगा, पर कमेंट सेक्शन में लिख के फिर भी बताने की कोशिश कीजिए कि आपने आंसर लिखा तो क्या लिखा।